13th chapter, the last chapter of our first SAM, this session. Let us start. वंदे मातरम बच्चों, देखते हैं आज ये लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं. I am Seema and I am studying in 3rd standard. After returning from school, from school, there are two people with whom I like to share all my news. They listen to my tales. तो first है my nani, and she is always excited and anxious to listen to me. तो उनकी जो ग्रैनी है वो बहुत ज़्यादा एंशियस है. हमको भी अगर किसी को एंशियस नहीं है, कोई ज़्यादा उत्सुक है नहीं है, तो हम उनको बताना छोड़ देते हैं. She waits for me to return from school. She is quite old and often has back pains. She cannot see and hear well. Every day in the morning, Papa reads the newspaper loud to her and she does the rest of the work herself. If someone tries to help her, she gets very upset. Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables. वो देख नहीं पाती है मेरी नानी, बट मेरे पापा उनको न्यूज़पेपर उनको रीड करके सुनाते हैं. She says these days children do not know how to cut vegetables properly. So the second person in my is Ravi Bhaiya. He lives with us and I call him Ravi Bhaiya and he calls my parents Bhaiya and Bhabhi. I do not know what is our relation, but he is very loving. He is also ready to answer my questions. He never says I will tell you later. So Ravi Bhaiya teaches in a college and the students of the college respect him a lot. Ravi Bhaiya is very fond of listening music and taking parts in plays. तो ये रवि भैया उनके भैया हैं जो बहुत अच्छे हैं, एक गुड़िया की बातें मानते हैं. वो कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि मैं बाद में बताऊंगा या ये चीज़ मुझे पता नहीं है. और वो उनके डैडी मम्मी को भैया भाभी बोलते हैं और वो म्यूज़िक लवर हैं, तो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक वो सुनते हैं बच्चों. फिर ही एन्जॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स एवरीवन लाफ. तो बहुत अच्छे से वो सबको हेल्प करते हैं और हंसाते हैं. थिंक एंड टेल हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली. टेल सब स्पेशलिटी अबाउट एवरीवन. तो 90 पेज पे हम पढ़ रहे हैं बच्चों. तो आपको बताना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और क्या स्पेशलिटी आपको उनकी अच्छी लगती है. तो लेट अस टॉक अबाउट सीमा's brother. भैया carries a white stick when he goes out. Looking at him moving around the house, no one can say that he cannot see. He likes to do all his work himself. If someone tries to help him against his wish, he gets angry. Whenever he needs any help, he asks for it. तो सब भैयास कैसे हैं, स्टूडेंट्स हैं और वो लोग बुक्स इधर उधर रिटर्न करते हैं. उनके पास रिकॉर्डिंग टेप्स होती है. तो ये भैया जो हैं वो वाइट स्टिक लेके निकलते हैं और वो अपने घर में चलते हैं. वो देख नहीं पाते हैं बट वो उनका काम खुद करते हैं. ठीक है. फिर है रवि भैया listens to these tapes and Bhaiya has many other books too. The pages of these books are thick and have rows of raised points, dots. He reads by running his fingers on the raised dots. तो उनके पास एक बुक है जिन पे रेज डॉट्स की बुक है. तो उन पे छिदे हैं और वो टच करके वो रीड करते हैं. टू हैव फन विथ भैया
I sometimes change the place of a stick. He does get upset but gets very angry. After all, I am his favorite sister, Seema. I have hardly reached the door that भैया spoke to me. Seema, you seem to be very happy today. तो भैया रिकग्नाइज करते हैं that not only me but all the family members from the sound we make as we move. We can even tell whenever I am happy or sad. Bhaiya, finally I am in a football team. I shared my news with him and he patted me and said, lovely, from today you are my फुटबॉल कोच. तो उनको कोच भी बना दिया. ओके, थिंक एंड राइट. सीमा's father reads newspaper aloud to her granny. How do you help all the old people? तो हम कैसे हमारे ओल्ड पीपल को हेल्प करते हैं वो आपको लिखना है. What kind of problems do people have in their own age? भूल जाते हैं, उनकी आई साइट वीक हो जाती है. Children take interest in stories. Children sensitize while discussing the characteristics in the stories. तो वो आपको बच्चों को जब भी मिले तो आपको उनको स्टोरी सुनाना है तो उनको बहुत अच्छा लगेगा बच्चों. फिर है नेक्स्ट हमारा हाउ डू रवीज भैया हाउ डिड रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग. तो हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन? कैन यू थिंक व्हेन यू नीड अ स्टिक? तो आपको पता चल रहा है कि आपको भी स्टिक की ज़रूरत है, क्या आप कर पाओगे? हाउ डू वी हेल्प दीज पीपल हु कैन नॉट सी? तो जो लोग बेचारे नहीं देख पा रहे हैं क्या उनको हम हेल्प कर सकते हैं? तो ये हम डिस्कस करके लिखेंगे. रिकलेक्ट एंड टेल, इज़ देयर एनी मेम्बर्स इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर? कोई है ऐसा जो नहीं देख पा रहा है, सुन पा रहा है, तो हम उनको कैसे हेल्प करेंगे हम डिस्कस कर सकते हैं. यू कैन रीड द स्टोरी बुक टू रवि भैया कैन नॉट सी बट ही ऑल वर्क ऑन हिज ओन. वो स्टडी भी करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बुक पढ़ते हैं क्योंकि उनको ब्रेन लैंग्वेज में सीखने को आता है. ही इज़ एबल टू डू हिज वर्क, क्लोज हिज आइज एंड प्ले द गेम. तो ब्लाइंड फोल्ड आपको पता है कैसा है, आंखों बंद करके खेलना होता है, एक दूसरे को पकड़ना होता है. तो ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप एंड वन बाय वन द अदर चाइल्ड टू हिम और क्विकली. द चाइल्ड हु इज ब्लाइंड फोल्डेड हैज़ टू डिस्कस और हैज़ टू गेस who the other child is by touching him. Take care not to make any sound. In the same way, one by one, blindfold all the children and each one is trying to touch the other और बताना है कि कौन कौन है. We can understand problems of others by putting ourselves into the situation. तो 92 पे हमने इतना पढ़ा. और नेक्स्ट है discuss and tell. How many children would recognize the others by touching? How many children would recognize the others by only hearing? And which are the earliest of these two? तो कौन ज़्यादा समझ सकता है कि अभी कोई आया? तो परफ्यूम की स्मेल से भी हम जान जाते हैं कि कौन है. फिर टच करने का तो बाद में है बट आप उनकी आवाज़ सुन के भी आपको पता चल जाता है. थिंक एंड टेल. हाउ मैनी टीथ आर देयर इन योर माउथ? तो वो आपको सबको पता है कितने टीथ हैं. विच स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ? तो वो भी आपको पता है कि 32 होते हैं, फिर धीरे धीरे 36 हो जाते हैं. हाउ मैनी थिंग्स कैन बी रिकग्नाइज ओनली बाय टचिंग? तो वो भी आपको आ जाएगा और आप करते भी होंगे. विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम साउंड दे मेक अस दे मूव जस्ट बाय स्मेलिंग एंड कैन गेट गेस? तो वो आपको रिकग्नाइज करना है और क्लोज टू आपको है वो आपको ऐसे ही आप पहचान जाएंगे लोगों को. फिर जिनके बारे में मैं बता रही थी कि देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग. तो ये है ब्रेल की लैंग्वेज, इसको आप अच्छे से
समझिए। ये जो है इसको कहते हैं ब्रेल की लैंग्वेज। थिक पेपर होता है, रो वाइज कुछ डॉट्स हैं, इसको टच करके आपको पता चलेगा, फिंगर्स रोल करके, कि क्या लिखा है। लेट्स डू इट, वेदर इट्स इजी और डिफ़िकल्ट आपको पता चल जाएगा। रिकग्नाइज अ, without seeing it, take a sheet of sandpaper, make a shape on it, and by pressing a piece of thick wool or thick thread of it, ask your friend to close the eyes and identify the shape of running her fingers on the sheet. Ask your friend to identify it and easy or difficult। तो कैसा है ये आपको बताना है बच्चों। तो पेज नंबर 93 पे आए हैं हम। तो टेक अ थिक पेज, जैसे हमने कहा कि मेक अ आउटलाइन ऑफ पेपर एंड हेल्प द कंपास और नीडल और मेक डॉट्स, ठीक है। और ये डॉट्स आपको पढ़वाने हैं आपके फ्रेंड्स के आईज़, और वो बंद करके, आईज़ बंद करके और फिंगर्स से उनको टटोल के पढ़ना है। यू हैव ए आउटलाइन, इट इज़ डिफ़िकल्ट अबाउट पीपल हु कैनॉट सी, बट लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। ये लैंग्वेज क्या है आपको रीड करना है। यू कैन सी रवि भैया रीड्स स्पेशल बुक्स, ये उनकी स्पेशल बुक्स होती हैं। ए ऐसा होता है, बी ऐसा होता है, सी ऐसा, डी ऐसा और ई ऐसे। तो ब्रेल स्क्रिप्ट ये है, तो आपको पहले ये लर्न करना है। फिर वी कम्युनिकेट ईदर बाय एक्शन और सिम्बल्स, सेइंग विदाउट स्पीकिंग, डम, शराज, ये हम एक्टिविटी खेल सकते हैं क्लास में। तो लुइस ब्रेल बिलोंग्स टू फ्रांस, ठीक है। उन्होंने वन डे व्हेन ही वाज 3 years old, ही वाज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल, सडनली ही पॉइंटेड द टूल, फिर उनको लगा कि टूल हर्ट हिज आइज एंड ही लॉस्ट द आई साइट। He had then interest in studying. Though he was not able to see, he did not give up. He kept thinking कि क्या करे क्या नहीं। फिर उन्होंने क्या किया बच्चों, दिस वे ही वॉज रीडिंग द लेटर एंड केम लेटर, उन्होंने ब्रेल की स्क्रिप्ट फिर पढ़ी, ठीक है। ये ब्रेल की स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते उनको कॉन्फिडेंस आया, फिर उन्होंने ये डॉट्स पढ़े और थिक पेपर पे एंड रेज एंड देन कैन सी द रनिंग ऑफ द फिंगर्स, और स्क्रिप्ट बेस्ड हुआ उनका, और थिक 6 पॉइंट्स, और ब्रेल स्प्रेड हैज अंडरगो मैनी चेंजेस। तो अभी काफ़ी चेंज आया है ब्रेल में, और अभी बच्चे लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और ब्रेल हैज़ नाउ बीन written study or using the computers. If you have showed the children actually about the braille script, they will be able to understand it better. तो 94 पेज पे हमने ये फिनिश किया है बच्चों। काइंडली आप गो थ्रू करना, हमने अच्छे से पढ़ा है ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। आप पढ़िए और आगे बढ़िए, और इस तरह से हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। तो इसके साथ हमारा ये यहाँ तक का टेक्स्ट बुक का सफ़र ख़त्म हुआ है। ऑल द बेस्ट फॉर योर SAM 1। थैंक यू सो मच, टेक केयर।